I welcome you all, my beautiful souls. Here we are again with a new reading about your love life. तो आज आपको इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करना है, आपको एक पाइल सेलेक्ट करना है. If you get attracted to another one, you can select that too. तो ये है pile number 1, pile number 2 and pile number 3. If you want to connect to the crystals before selecting, let's do that. Okay, so with crystals you can select. For pile number 1, this is blue lace agate. For pile number 2, it's rough rose quartz. And for pile number 3, it's selenite. Now close your eyes, take few deep breaths and select the card which is attracting you, which you are drawn to. And if you feel like selecting more than one pile, do know that there must be some message which your subconscious, your inner self is looking for. I welcome you, my pile number 1. So today we are talking about how is your love life seems. रिलेशनशिप हमारी ज़िंदगी का बहुत गहरा हिस्सा होते हैं और वो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट पे असर भी डालते हैं. आज आपके लव लाइफ में, आज आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट में क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है, क्या मैनिफेस्टेशन है, क्या जल्दी आ रहा है और क्या छोड़ के जा रहा है, वो सब के बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया था, लेट्स सी दैट, द स्वॉर्ड. एंड इफ यू कैन सी देयर आर 4 पार्ट्स. 1, 2, 3, 4. इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड. लेकिन हम पहले टैरो निकालेंगे और उसके बाद में हम एक एक करके उसे एनालाइज करते जाएंगे. सो लेट मी गेट योर टैरो. फॉर माई पाइल नंबर 1, let's select 4 tarot cards from this deck. One more and the last card of the deck. Okay, तो एक एक करके कार्ड को ओपन करते हैं और देखते हैं कार्ड हमसे क्या कह रहे हैं. द मैजिशियन का कार्ड. Okay, so my pile number 1, one thing is very clear. Whatever you want to manifest in your love life, this is the perfect time to do that. 7 of Wands. Okay, let's move further. काफ़ी समय से आप काफ़ी अनसर्टनिटी फेस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में या टू अट्रैक्ट अ न्यू रिलेशनशिप. दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर. 4 of Wands and the World. Oh my God, my pile number 1. This is something very interesting, and that one thing is very clear, that in the past you might be struggling or a little confused about the things. Uncertainty is around your energy from a long time. At the same time, you really want to have a beautiful space to be with your loved one. You want to manifest a relationship. If you are already in a relationship, if you are already married, maybe you are looking for buying a new house or something like that. Even that energy is under the manifestation in the coming times. We'll get more tarot cards to understand it in a little better, in a deeper way. But my pile number 1, अब तक ज़िंदगी में आपने जिस भी चीज़ का इंतज़ार किया है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी लाइफ में अब मैनिफेस्ट होकर आने को तैयार खड़ी है. Some more cards for my pile number 1. आप काफ़ी समय से या तो कंफ्यूज चल रहे हैं या अपने ड्रीम्स को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन शायद अब समय आ गया है आपके लिए जो बहुत क्लैरिटी से ये बता रहा है, इट्स टाइम नाउ टू मैनिफेस्ट, टू बी क्लियर, टू मैनिफेस्ट अ न्यू रिलेशनशिप, टू मैनिफेस्ट अ न्यू हाउस. पूरी दुनिया आपकी बदलने को तैयार खड़ी है. कमाल के कार्ड्स हैं. वाओ. My pile number 1, I am so happy to see your cards. यहाँ पे 2 cards आए हैं खुद ही. Everything is crystal clear for you, my pile number 1. सबसे पहली बात, द चेंज द वर्ल्ड, ये भी कार्ड दोनों बहुत सिमिलर कार्ड्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर आप दोनों के सर्कल, लाइफ का एक सर्कल पूरा हुआ है. शायद इफ़ somebody is struggling with the relationship aspect, शायद बहुत समय से आप पास्ट में फंसे थे,
बिकॉज ऑफ दैट आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप और द मैरिज फ्रंट, तो वो समय बदलने वाला है। द वर्ल्ड मतलब एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ विल मैनिफेस्ट एट द सेम टाइम, सी द कार्ड टोटलिटी। तो समवेयर आपके लिए टोटली जो पिक्चर है ना वो बदलने वाला है। एट द सेम टाइम इंटेंसिटी का कार्ड है। you are somebody who is very intense, very passionate, very focused, और शायद इसी वजह से आपका जो भी रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में जब भी डिस्टर्बेंस हुआ है, इट इज़ अफेक्टेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो आपके लिए एक बहुत ही क्लियर गाइडेंस है कि एक तो मैनिफेस्टेशन का मैजिशियन आपके लिए तैयार खड़ा है। आपके बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट सॉल्व होने वाले हैं, नॉट जस्ट योर लव। शायद आपके फैमिली के लिए भी जो एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है, बाइंग अ हाउस, ब्रिंगिंग सम न्यू चेंज, अगर आप किसी चीज़ के पूरे होने का इंतज़ार कर रहे थे, मे बी यू वर थिंकिंग कि इफ़ आई गेट अ जॉब आई माइट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड इन अ रिलेशनशिप, तो वो भी होने वाला है। माई पाइल नंबर 1, द कमिंग टाइम्स आर कमिंग विथ ब्यूटिफुल मैनिफेस्टेशन एनर्जी इन दी लव लाइफ ऑफ योर्स। आई एम so happy। इंटेंसिटी का कार्ड है, तो समवेयर यू आर वेरी इंटेंस पर्सन बट विदाउट डायरेक्शन, यू विल नॉट रीच एनीवेयर। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। तो सबसे पहले एक बार शांति से बैठें, जो आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जिस तरह का पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो जस्ट लिस्ट डाउन करिए कि विच आर द थिंग्स विच यू वांट टू मैनिफेस्ट सून। मे बी मैरिज, मे बी स्टेबल जॉब, मे बी मोर हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग इन द रिलेशनशिप, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन दी मैनिफेस्टेशन। तो आप जो भी सोचेंगे वो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में कन्वर्ट होके आ जाएगा। इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, इट्स राइपनेस का कार्ड है। मतलब जैसे होता है ना कि हम बीज बोते हैं और समय आता है फसल काटने का, तो यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ energy, lot of intensity, lot of emotional investment to the relationship, and now it's time that it will all manifest in your life. I'm so happy, my pile number 1. My pile number 1 will again go for some love cards to give you the direction कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सी एनर्जीज अभी आपके लिए अवेलेबल हैं। सो दीज आर दी लव कार्ड्स। लेट्स सेलेक्ट 2 for you. One more, I think this is calling out. Soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Oh my God. See, that's what I was talking about. Everything is under manifestation. Magician का energy है जो सब कुछ manifest करने के लिए तैयार है। आपको बिलीव करना है दैट यू आर अट्रैक्टिंग द पार्टनर विच यू रियली वांट इन लाइफ, एंड वंस यू बिलीव थिंग्स विल मैनिफेस्ट फॉर यू वेरी 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 स्मूथली। अगर आपके सारे कार्ड्स देखें, थोड़ी सी अनसर्टनिटी के अलावा सारे कार्ड्स आर जस्ट सुपर पॉजिटिव, मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड दिस वन, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, ये कार्ड ये कहना चाहता है कि इफ़ यू हैव नॉट येट फॉलन इन लव, maybe this is the signal that you will. Somewhere relationship is round the corner for you. जो लोग हमेशा से इंतज़ार कर रहे हैं to fall in love or to create a relationship, manifest a relationship, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। My pile number 1, such an amazing energy for this love life of yours. आपके लिए मैं कुछ और टैरो निकालूंगी that will help you to understand कि आप जो भी रिलेशनशिप में हैं अभी, करंट रिलेशनशिप में, वो कौन सी एनर्जी में है। और आपके लिए मैं ये भी निकालूंगी कि आपको अपने रिलेशनशिप एस्पेक्ट पे कहाँ काम करने की ज़रूरत है। सो पहले 2 कार्ड्स हम निकालेंगे टू सी कि करंट रिलेशनशिप या करंट जो एनर्जी है लव लाइफ को लेके वो कहाँ है, और आपको कहाँ कुछ चेंजेस करने हैं टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल एंड टू अट्रैक्ट द मोर ब्यूटिफुल एनर्जीज इन योर लाइफ। ओके, so let's check these cards. I am so excited to see your journey. Okay, आपका करंट रिलेशनशिप या जो करंट एनर्जी है अभी रिलेशनशिप की, उसका कार्ड्स है। और ये देखिए दोनों कार्ड्स कप के कार्ड्स हैं, ठीक है। वन इज क्वीन ऑफ कप्स एंड द सेकेंड वन इज 5 of cups.
तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली आपके पास जो अवेलेबल है, जो रिश्ता आपके पास है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत फुलफिलिंग है, लेकिन शायद आपको जो है वो नहीं दिख रहा, और जो नहीं है वो आपको चाहिए. मे बी यू आर लिटिल डिसअपॉइंटेड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ग्रैटिट्यूड विच यू शुड बी फीलिंग फॉर द थिंग्स विच यू हैव. इसका मतलब है कि जो आपके पास अभी जिस एनर्जी में आप है वो बहुत ही ब्यूटीफुल नर्चरिंग एनर्जीज है. तो शायद अगर पास्ट का कोई पेन है, पास्ट का कोई दर्द है, तो वो आपको जाने देना है. चेंज आ रहा है, आपको अपनी इंटेंसिटी को पॉजिटिवली डायरेक्ट करना है. एग्जिस्टेंस, अगर आपने पास्ट की चीज़ों को जाने नहीं दिया है तो यू विल फील लोनली, यू विल फील अनसपोर्टेड, यू विल फील एज इफ यूनिवर्स आपके साथ नहीं खड़ा है. लेकिन सच तो ये है कि एवरीथिंग इज देयर फॉर यू, मे बी यू आर नॉट सीइंग इट. कहते हैं ना कि अगर आप रोशनी की तरफ पीठ करके बैठ जाओगे तो रोशनी दिखेगी कैसे? अगर आप अपनी आंखें ही बंद कर लोगे तो उजाला नज़र कैसे आएगा? तो ये सेम चीज़ है कि जो आपके पास है वो आप नहीं देख रहे, लेकिन जो खो चुका है, या पास्ट में कोई रिलेशनशिप हुआ हो, या आपका ब्रेकअप हुआ है, या आपने जो इमेजिन किया था अपनी लव लाइफ वैसी आपकी लाइफ नहीं है, लेकिन जो आपके पास है उसे आप नहीं देख रहे हैं. तो मैं पाइल नंबर 1 थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड के साथ एक बार ये देखें कि क्या आपके पास है, वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स, कौन कौन सी क्वालिटीज़, कौन कौन सी नर्चरिंग लेके आपकी ज़िंदगी में बैठा है जिससे आप शायद इग्नोर कर रहे हैं. What can you change within you to bring it in a more beautiful way, to create it in a beautiful relationship? दो चीज़ें हैं. अगर आप पास्ट में फंसे हैं तो आपका हार्ट चक्र बंद होगा. हार्ट चक्र बंद होगा तो आप कैसी एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे? सोचिए. जस्ट लुक एट द पिक्चर. इट्स लाइक क्रॉसिंग योर हैंड्स टू योर हार्ट चक्र. इट्स लाइक दिस. तो अगर आपने ऐसे कोई भी रखा है एनर्जी, तो कोई भी एनर्जी आपकी ज़िंदगी में कैसे आएगी? तो माय पाइल नंबर 1, जिन लोगों का भी ब्रेकअप हुआ है या डिसअपॉइंटमेंट्स मिली है, हर्ट मिला है, तो आपको उससे बाहर निकलना है, बिकॉज ब्यूटीफुल एनर्जीज आर वेटिंग फॉर यू. और ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी रिश्ते में हैं लेकिन थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं, तो आपके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि क्या आप एक परफेक्ट पार्टनर हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर के लिए एक परफेक्ट पार्टनर हैं? बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट, अंडरस्टैंड दैट. इन दिस होल वर्ल्ड नथिंग इज परफेक्ट. तो आपको ये समझना है कि जो मेरे पास है, क्या मैं उसका वैल्यू कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. और एक फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, तो शायद आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के चक्कर में दोस्ती करना भूल गए हैं अपने पार्टनर के साथ. एंड इफ़ यू आर creating a new relationship in life, if you want to harmonize your relationship which you already have, तो आपको इतना समझना है, कम्युनिकेट करें, दोस्त की तरह सामने वाले को देखें तो आप कम जज करेंगे. आप देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एज अ पार्टनर आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं, बहुत जजमेंटल हो सकते हैं. हम कभी अपने दोस्त को जज नहीं करते, लेकिन हम हमारे पार्टनर को बहुत जज करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं. तो ये कार्ड यही कह रहा है, दोस्त की तरह पहले रिश्ते को बनाएं. देखिए, आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट में इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, लेकिन शायद आपने अपने ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से, शायद अपने पास्ट के वजह से, आपके डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से आप उस रिश्ते को पूरी तरह से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं. जैसे आप उसे एक्सेप्ट करेंगे ना, पूरा रिलेशनशिप ब्लॉसम कर जाएगा आपके लिए. दैट इज़ द मैसेज. I will get one more card which will help you to understand कि एक और आपके लिए मुझे एक इंसाइट आ रहा है seeing this card. अगर मैं पाइल नंबर 1, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दोस्ती में हैं और दोस्ती को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि दोस्ती में ही शायद वो प्यार ढूंढ रहे हैं, तो ये कार्ड कह रहा है कि वो पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल है. बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अपनी दोस्ती को एक अलग मुकाम पे लेके जा सकें. एंड पर्सनली आई बिलीव कि जिस रिश्ते में दोस्ती नहीं होती वो रिश्ता कभी लंबा नहीं चलता. तो सबसे पहले, अगर आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, आप कोई भी रिलेशनशिप में हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले उसमें दोस्ती की एनर्जीज़ को प्लीज़, बोलते ना, इनिशिएट करें. दोस्त बनेंगे ना तो आप जज नहीं करेंगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, फॉरगिव जल्दी कर देंगे, दिल बड़ा रखेंगे, और यही सारी चीज़ें तो हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाती है. आपके लिए एक और कार्ड फॉर द इंसाइट to manifest this in the best way and as soon as possible. उसके लिए आपको क्या करना है? Just one card.
एंड वन कार्ड फॉर द टाइम रेंज. तो विल गेट 2 कार्ड्स, सॉरी. आपका टाइम रेंज क्या है, अगर आपकी ज़िंदगी में रिश्ता नहीं है तो कब तक आने का चांस है, और अगर है तो आप कितने समय में उसे बेहतर बना सकते हैं. बट लेकिन आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा. सो 1 कार्ड फॉर टाइम रेंज एंड अनदर कार्ड फॉर टाइम रेंज. ओके, वन मोर हैज़ कम, सो आई विल इंक्लूड दिस ऑल्सो. ओके, सो पावर एंड ट्रायम्फ. तो देखिए, प्यार में अगर पावर का कार्ड आया है तो पावर हमेशा इनर पावर होती है. और अगर आप ध्यान से देखें ना, देयर आर 2 फेसेस. तो सबसे पहले मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है रिलेशनशिप में आगे थोड़ा सा मूव करने का, तो यू शुड फील वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव फॉर यू. और अगर आप अपनी शक्ति को, अपने मन को मजबूत बना के आगे बढ़ेंगे तो विजय निश्चित है, क्योंकि ट्रायम्फ का कार्ड आया है. ट्रायम्फ मतलब विनिंग. तो इतना ज़रूर है, माई पाइल नंबर 1, दैट यू आर समबडी हु इज़ वेरी इंटेंस एंड दैट मे बी द रीज़न कि आप बहुत इंटेंसली हर्ट हो जाते हैं. जैसे आप अपने पुराने पास्ट को छोड़ेंगे तो आपके लिए हर चीज़ मैनिफेस्टेशन के लिए तैयार खड़ी है. हर चीज़, बीट योर जो आप चाहते हैं. आप अगर घर शादी करना चाहते हैं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हाउस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम बिग चेंजेस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फ्रेंडशिप को कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इट इज़ इन द कार्ड्स. बट यू नीड टू लेट गो द पास्ट, यू हैव टू वैल्यू व्हाट यू हैव एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. दीज 2 कार्ड्स विल गिव सम नंबर एंड दैट विल बी नंबर ऑफ मंथ्स जिसके बीच में आपका ये मैनिफेस्टेशन होने वाला है. सो लेट्स चेक. वाओ, सो इट्स 1 and 2. तो इसको मैं 2 तरह से देखूंगी. एक तो ये है कि अगर अभी जो मंथ चल रहा है तो 1 to 2, तो ये 3 months के अंदर थिंग्स विल बी मैनिफेस्टिंग फॉर यू इन अ ब्यूटिफुल वे. और अगर आप दोनों कार्ड्स देखें, मैंने सिर्फ कार्ड निकाले थे फॉर नंबर्स, राइट, एंड सी द कार्ड्स. लव बिगिंस एंड स्पिरिचुअल यूनियन. So my pile number 1, you are amazingly, divinely blessed for the relationship energy. आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको अपने भीतर कहाँ काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने पास्ट को कैसे जाने देना है, कैसे आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, और जो चीज़ें काम नहीं कर रही थी उस पर थोड़ा सा अपने अंदर जाके भी सवाल करना और अपने हार्ट चक्र को बंद नहीं रखना है. आप इंटेंस हैं, दैट डजंट मीन कि हर चीज़ को इंटेंसली लेके अपने हार्ट चक्र को बंद कर लें, बिकॉज इफ़ यू क्लोज योर हार्ट चक्र, योर लव एनर्जी विल नॉट फ्लो एंड यू आर समबडी who has amazing energy for life, for love, and for the overall living aspects of life. So this is the reading for my pile number 1. Amazing energies with the time range also just 2 to 3 months, and a beautiful relationship or the harmony in the current relationship is coming for you. Do take care of yourself while you take care of others, and do know your relationship with yourself is very, very important, because that is how we manifest the relationship outside. Stay blessed, take care, and stay tuned. Thank you so much. Namaste. I welcome you my pile number 2. आज हम बात करने वाले हैं लव लाइफ की. और हम जानते हैं कि लव लाइफ कितनी इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप एस्पेक्ट हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रहता है, और वो हमारी लाइफ के कितने अलग अलग एस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करता है. तो सबसे पहले जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया था, द मास्क. वाओ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और ध्यान से देखें, एक तरफ कलर्स हैं और एक तरफ डार्कनेस है, कोई कलर्स नहीं दिख रहे. इसका मतलब, जो बेसिक कार्ड का मतलब है जो हम आगे रिलेट करेंगे, बट इसका मतलब ये है कि फर्स्ट, आर यू वेयरिंग एनी मास्क टू बी इन द रिलेशनशिप? आर यू समबडी हु इज ट्राइंग टू बी समवन एल्स जस्ट टू बी इन द रिलेशनशिप? क्या अपने आप को बहुत दबाना पड़ता है, सप्रेस करना पड़ता है? अपने आप की ऑनेस्टी के साथ आप ऑनेस्ट नहीं हैं, आप अपने आप से ऑथेंटिक नहीं है जस्ट टू बी इन द रिलेशनशिप? कभी कभी होता है ना कि किसी और के हिसाब से रहते रहते हम खुद को भूल जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं? ये ज़रा आप चेक कर लें. तो सबसे पहले हम आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स निकालेंगे दैट विल गिव अस द प्रॉपर गाइडेंस दैट वेयर यू आर इन द रिलेशनशिप एस्पेक्ट, इन द लव एस्पेक्ट्स, एंड व्हाट इज वेटिंग फॉर यू. सो फॉर माई पाइल नंबर 2, 1, 2, one more card, 3, and the last of the deck. 2 कार्ड्स आ गए आपके लिए, बोनस एक कार्ड का. तो ये तो बहुत बड़ा इंडिकेशन है दैट यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू, नो मोर देन यू फील दैट यू हैव. चेक करते जाते हैं. तो सबसे पहला कार्ड है 5 of Cups,
Okay. Four of Pentacles, Seven of Cups, interesting. Page of Pentacles and the Page of Swords. Okay, my pile number 2. It's very interesting to see this. So one thing is very clear, that you are somebody who is kind of juggling with few things in life. आप करियर के साथ जगल कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप के साथ भी जगल कर रहे हैं. समवेयर यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर करियर एज वेल. समवेयर इमोशनली ऑल्सो यू आर नॉट वेरी स्टेबल. एट द सेम टाइम यू आर समबडी हु हैज़ द एबिलिटी टू हैव द क्लैरिटी. तो अगर आपके अंदर अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्लैरिटी आपके लिए पूरी तरह से वेट कर रही है. इफ़ यू कैन सी देयर इज़ अ रेनबो, यहाँ पे पूरा डार्कनेस है, फिर रेनबो है. इसका मतलब है शायद बोलते हैं ना, वो मुश्किल वाले दिन बस अब गुजरने वाले हैं और बहुत सारी नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली है. वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू आर समबडी हु इज़ नॉट ईजी टू डिसाइड ऑन द डिसीजंस. शायद आपके डिसीजंस आप खुद नहीं ले पाते हैं, लेकिन आपके अंदर पूरा विजडम है अपने आप डिसाइड करने का. I will get more cards for you for the more clarity which you need right now. Somewhere relationship को लेके अगर आपके साथ कहीं ऐसा है कि you are deciding about a relationship and you are not sure, I think this will be the guidance. और अगर आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी रिश्ता है जिसको लेके आप परेशान हैं या कंफ्यूज्ड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, तो उसके लिए भी आपको गाइडेंस मिलेगी. तो लेट्स सी मोर कार्ड्स फॉर यू. Oh my God, you are getting many cards, my pile number 2. Somewhere universe wants to give you very clear messages. Instead of 1, 2 or 3 cards are coming. That doesn't happen just like that. ऐसा बहुत कम होता है, बट अब हो रहा है तो हम उसे बिल्कुल रिस्पेक्ट करेंगे. आगे चलते हैं. Wow, the source, the silence, and these 3 cards have come. Patience, guidance, and receptivity. Okay, my pile number 2. So ध्यान से अब इन कार्ड्स को देखते हैं और समझते हैं कि what is happening. सबसे पहली बात, मे बी यू आर somebody who is very hastily you decide. आप डिसीजन लेने में बहुत जल्दबाजी करते हैं और उसके बाद आप उसमें फंस जाते हैं और उसके बाद आप उसे जगल करते रहते हैं और थोड़ा सा मेस क्रिएट हो जाता है. सेकेंड, एट द सेम टाइम यू आर somebody who is very 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 powerful within. आपको शायद अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है. माय पाइल नंबर 2. तो जो भी परिस्थिति आप अभी ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं, कन्फ्यूजन, मेस, इमोशनली अनसेटिस्फाइड, इमोशनली मेस्ड अप लाइफ लग रही है आपको, लेकिन सच मानिए चीज़ें बहुत बदलने वाली है. आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी. इफ़ यू हैव अ पेन एंड पेंसिल और नोटबुक, प्लीज़ राइट इट डाउन. सबसे पहले योर इनर सेल्फ विल गाइड यू. तो थोड़ा सा शांति से थोड़ा मेडिटेट करना, थोड़ा सा ब्रेथ वर्क करना शुरू करें. डू सम चैंटिंग एंड प्रेयर्स टू द डिवाइन एनर्जी यू बिलीव इन, बिकॉज सम ब्रेक थ्रू इज कमिंग. एंड व्हेन आई से दिस ब्रेक थ्रू, आई एम सॉरी, हम लोग लव रीडिंग कर रहे हैं, बट ब्रेक थ्रू आने वाला है आपके करियर में और आपके लाइफ में इन जनरल. तो आपके करियर में भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है, जो आप काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर में. तो करियर में इट वाज लाइक यू बहुत मुश्किल से आप बैलेंस कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना हैंड टू माउथ. तो उसमें बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू आने वाला है. समवेयर यू आर ब्लेस्ड बाय द डिवाइन. यू जस्ट नीड टू कनेक्ट, और कनेक्ट करें और हैव पेशेंस, क्योंकि पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो अगर हमारे अंदर होती है ना, तो हम इंतज़ार में परेशान नहीं होते हैं ज़्यादा. व्हाट डज इट मीन बाय पेशेंस? उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि भाई जब आप इंतज़ार कर रहे हैं तो हम एजी नहीं हैं, एंग्जाइटी में नहीं हैं, हम बहुत नेगेटिव नहीं सोच रहे, जिसकी वजह से हमारी पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिवली फ्लो करती है. राइट? तो ये आपको ध्यान में रखना है. सेकेंड, हड़बड़ी में डिसीजंस नहीं लेने हैं. कोई भी डिसीजन लेना है, टेक अ वाइल. कहीं सामने कोई आपसे कोई सवाल करता है तो उस समय आप एक समय ले लें, शांति से बैठें, अपने अंदर जाएं, मेडिटेशन करें. आई विल से मोर ऑफ इंट्रोस्पेक्ट करें, थोड़ा सा डिवाइन कनेक्ट करें, एंड यू विल फील दैट यू हैव द आंसर. इन द पास्ट यू हैव टेकन मेनी डिसीजंस विच हैव गॉन रॉन्ग.
मतलब रॉन्ग राइट तो नहीं होता, लेकिन बोलते हैं ना ऐसे डिसीजंस जो कहीं जाके फिर आपके लिए मुसीबत बन गए, आपके लिए मेस हो गए, आपके लिए परेशानियां पैदा कर दी। और उसमें ये भी हो सकता है कि शायद आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं, माई पाइल नंबर 2, फ्यू ऑफ यू माइट बी, कि जिसमें यू कांट बी योर सेल्फ, समवेयर यू आर जगलिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू आर टायर्ड और आप थक चुके हैं। तो उसके लिए भी यही गाइडेंस है, अपने भीतर जाएं, अपने डिवाइन से कनेक्ट करें, एंड यू विल गेट द गाइडेंस हाउ टू डील विथ इट। ओके, आगे हम कुछ और कार्ड्स निकालेंगे टैरो के टू सी फर्दर। जो भी एनर्जी आपकी ज़िंदगी में अटकी है और जो आ रही है, तो अटकी है उसे रिलीज़ कैसे करना है, उसके 2 कार्ड्स, और जो आ रही है उसे पूरी तरह रिसीव कैसे करना है, क्योंकि आपके लिए एक रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि बिकॉज यू आर नॉट इंटरनली वेरी बैलेंस्ड, तो उसकी वजह से आप बहुत बार गलत लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल कि मे बी यू आर अ पीपल प्लीजर एंड समवेयर यू आर नॉट वेरी श्योर वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, तो you attract random people who are like, who have different core values, who are very different than you, जिसकी वजह से you can't be yourself, and then it is a long struggle, because if you can't be yourself then life is not life, right? तो वो एक चीज़ समझनी है कि हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। Let's see some more tarot cards to help how can you manifest love, harmonize love, and what within needs to be released and what we need to work upon। ठीक है, क्या रिलीज करना है, किस पे काम करना है और कैसे मैनिफेस्ट करना है। तो हमने ये चारों कार्ड्स निकाले हैं, लेट्स सी। ओके, तो जब रिलेशनशिप के रीडिंग्स में जब भी कॉइन्स आते हैं, पेंटिकल्स आते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल आया है, अगेन 4 ऑफ पेंटिकल, सी सेम कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज अफेक्टिंग योर लव लाइफ in a big way. Maybe you have shown that you have so much money, but you don't, and you are stuck in that. Maybe to just create a lifestyle outside, you are struggling with yourself, and that has become a money constraint. So one very small thing we need to understand: if you can't be yourself, that is financially, mentally, emotionally, spiritually, then that is not a relationship. Okay, so that needs to be changed. सेकेंड, इसका मतलब ये भी है कि शायद आपका जॉब या वर्क या करियर अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यू नो, टू मूव फर्दर इन द रिलेशनशिप। अगर शादी करनी है तो डेफिनेटली यू नीड अ स्टेबल इनकम। तो इसके लिए हमें क्या करना है वो भी हम देखेंगे, what you need to let go, 3 of wands, okay, and what do you need to balance। ओके, देखिए ये भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड इज अ कार्ड विच सेज दैट वन साइकिल इज एंडिंग, द न्यू साइकिल इज स्टार्टिंग। 3 ऑफ वॉन्ड इज टेलिंग यू दैट सम ग्रोथ इज कमिंग इन योर लाइफ। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फिनांस की, तो ये ग्रोथ का कार्ड है। तो इसका मतलब है कि आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स अभी सॉल्व होने वाले हैं, लेकिन उसको बहुत पकड़ के ना रखें। You convey to your partner that this is the phase, I will need 3 years or 1 year or 6 months whatever, और थोड़ा दिमाग से खुद को रिलैक्स कर लें, because if you will not be relaxed, you will not create what is meant to be. Your silence will guide you, there is a source which will bring the breakthrough and the growth, right? At the same time एक 10 of swords का कार्ड है, तो मैं पाइल नंबर 2, आप लोग जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं with the breakups or the separation or the losses which has happened recently, this is a card, and how to deal with it, we'll get 1 or 2 more cards, how to deal with it, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं, लेकिन इस साइकिल को ख़त्म करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं पाइल नंबर 2, Queen of Swords. So maybe you need to be a little more practical. You need to communicate very clearly. अगर ब्रेकअप हुआ है या सामने वाला आपको परेशान कर रहा है, साइकिल ख़त्म हो चुकी है लेकिन सामने वाला जाने नहीं दे रहा है, तो you have to talk as blunt as possible, because that is important, because you need to let go something which is not working for you. सेकेंड कार्ड आया है 9 of Wands.
दैट मीन्स कि आप स्टक तो डेफिनेटली हैं माई पाइल नंबर 2. सम ऑफ यू आर रियली स्टक इन द ओल्ड एनर्जीज. यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन, यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग न्यू रिलेशनशिप्स इन लाइफ. यहाँ पे भी थोड़ा सा पेन और कन्फ्यूजन है, और यहाँ पे भी ये दिखा रहा है कि शायद पास्ट में कुछ लोग फंसे हैं माई पाइल नंबर 2. और आपको इतना समझना है कि इमोशंस को दबाना नहीं है, इमोशंस को फील करें, प्रैक्टिकली अपने आप को क्लियर करें, शांति से प्रो एंड कॉन्स लेके बैठें. टॉक टू समबडी हु कैन हेल्प यू. यू कैन मीट अ थेरेपिस्ट और अ फ्रेंड who can kind of sit with you and guide the pro and cons of the relationship which you were or which you are right now. Maybe आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप से बाहर निकलने का सोच रहे हैं जो आपके लिए सफोकेटिव हो चुका है. So this is a card which is saying yes, you should definitely do that, because somewhere it is not working. It is not a true relationship. Maybe because of this relationship you have changed yourself so much that you feel that you are not there anymore. And these cards are telling you very clearly you might take some time, but then when you will be out, whole aspect of life will be changing for you, my pile number 2. तो जिनकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन है और मनी का इश्यू है वो सॉल्व हो रहा है, लेकिन जो लोग अभी तक अटके हैं उनके लिए भी एक गाइडेंस आया है माय पाइल नंबर 2. अब हम लोग आपके लिए एक कार्ड निकालेंगे जो ये बताएगा कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बिग चेंज, मे बी अट्रैक्टिंग अ न्यू रिलेशनशिप, मे बी creating harmony in the new relationship, maybe to just able to move on, you know, smoothly. तो उसके लिए आपको क्या करना है, और साथ में मैं टाइम रेंज भी आपको निकाल के दूंगी. तो पहले आपको सिर्फ वन गाइडेंस, वेरी क्लियर गाइडेंस, व्हाट माय पाइल नंबर 2 शुड डू टू मैनिफेस्ट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. एंड प्लीज गिव अस द टाइम रेंज फॉर द same. No, not this one. This one is calling. So it might be number of months. So let's check. सबसे पहले आपको क्या करना है to bring this mental conflict. जैसा मैंने आपको बताया कि आपके अंदर एक अनसर्टनिटी है, शायद आप खुद में क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो आपको अपने मेंटल कन्फ्लिक्ट को दूर करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज हम वो मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते जिसके लिए हमारे मन में, हमारे माइंड में क्लैरिटी ना हो. So my pile number 2, you just need to do one thing. Just write down what you are looking for in life and in relationship, and then just know that how to bring that, because amazing manifestation energy you have. इतना कमाल का एनर्जी होने के बावजूद भी अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आप परेशान चल रहे हैं, दैट मीन्स समवेयर आपके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है. इसीलिए साइलेंस का कार्ड आया है, इसीलिए आपको अपने अंदर की गाइडेंस से कनेक्ट करना है, इसीलिए सोर्स का कार्ड आया है जो आपको एकदम हेल्प करने वाला है. और ये आता है टाइम रेंज. दैट कौन सा टाइम रेंज है जिसमें आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन है ये पूरी हो जाएगी. So it's card of 1 and 7. So it can be 1 plus 7, 8 months. So from today you can count 8 months. But the range is 1 to 7 months. So from this month तो next month में 1 महीना, और उसके बाद आगे और 7 months में ये होने का चांस है. At max 7 plus 1, 8 months. So this is your reading, my pile number 2. I must tell you that you are somebody who is beautiful but who is struggling to maintain a relationship or to attract a relationship or to let go of the past. थोड़ा सा आपको अपने पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कमाल की एनर्जी है, इतनी कमाल की पूरी लाइन आप देखें, पेशेंस, गाइडेंस, साइलेंस, सोर्स, ब्रेक थ्रू, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अमेजिंग एनर्जीज. लेकिन आपको सबसे पहले खुद के साथ सच्चाई से बैठना होगा, खुद को सच बोलना होगा. कहाँ कहाँ आपने एक अनऑथेंटिक सेल्फ जिया है उससे आपको बाहर निकलना होगा. बिकॉज आवर ओन पावर is there where we are totally present with our pure honesty, जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है because of whatever reasons you have created a facade or a personality which you are not. थोड़ा उस पर काम करें, बाकी कमाल की energies हैं, and the time range is also there. So this is the reading for you, my pile number 2. Take care of yourself and do know that connection with self and clarity within will bring the clarity in the outside world. Take care of you. Stay tuned. We are coming with many such readings. Lots of love. Namaste. Welcome, my pile number 3. So here we are for our reading for the love life. हमारे relationships के लिए हम कितनी सारी चीज़ें करते हैं, और हमारा relationship हमारे ज़िंदगी के हर aspect पे असर डालता है. देखते हैं आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है वो कौन सा है, उसके बाद हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे. The thread. And if you can see in this center it is going.
So basically this card is about connecting with yourself, knowing what is the center of our life, knowing what really matters, knowing where we are going, and knowing what you really are looking for in life. ये कार्ड आपके लिए एक रिमाइंडर भी है और शायद ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप शायद खुद से कनेक्टेड हैं, नहीं हैं, तो समय आ चुका है। सबसे पहले हम आपके लिए टैरो कार्ड्स निकालेंगे टू सी वेयर यू आर इन योर लव लाइफ। 1 2 3, sorry, and the last one of the deck. Wow, just look at the card. 2 of cups with 2 roses. My pile number 3, you're blessed with the relationship energy already. 9 of cups, 10 of wands, and Queen of swords. सो वन थिंग, एक के बाद एक चीज़ें लेते हैं। सबसे पहली बात, दैट यू आर समबडी हु इज़ वेरी रोमांटिक। फॉर यू रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। एट द सेम टाइम यू आर समबडी हु इज़ काइंड ऑफ टेक्स लॉट ऑफ बर्डन इन द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को चलाने का पूरा बोझ आप अपने सर पे ले लेते हैं शायद, तो उसको चेक करना है, क्योंकि रिलेशनशिप एक गाड़ी है जिसके 2 पहिए हैं, तो पूरे चीज़ों को आप नहीं चला सकते। सामने वाले का उतना इक्वल पार्टिसिपेशन और एसोसिएशन और सपोर्ट ज़रूरी है, ये आपको एक याद रखना है। यू आर समबडी हु इज़ वेरी इंट्यूटिव, यू आर समबडी हु कैन बी वेरी अपफ्रंट एट टाइम्स, नॉट ऑलवेज बट इफ़ नीडेड। और आपके अंदर एक शक्ति है कि आप बहुत इंट्यूटिवली चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि प्यार में, लव में यू काइंड ऑफ इग्नोर दैट, तो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। आगे और बढ़ते हैं। इट्स when I see your card, I feel that it is very interestingly your love life journey is going on. Some more cards will give you more insights, deeper guidance in the messages which needs to be there for you right now. You are a very intense person. At the same time, there is something which you have been working on emotionally. Wow, I love it. My pile number 3, you are somebody who is very much in the harmony with your own self. That is why there is a wisdom and there is harmony. That is amazing. And understand, there are 2 dolphins. Dolphins are symbol of true love. ऐसा कहते हैं कि डॉल्फिन्स अपने पूरे लाइफ टाइम में जो भी पार्टनर उनके साथ चुनते हैं वो उन्हीं के साथ पूरी ज़िंदगी रहते हैं। सो समवेयर यू आर समबडी हु डजंट बिलीव इन फ्लिंग्स। इफ़ यू हैव लिव्ड विथ फ्लिंग्स, मे बी इट्स टाइम नाउ दैट यू हैव रियलाइज्ड you are somebody who's looking for a long-term relationship, and these cards are saying yes, it is coming in your life. At the same time, you need to work on your emotional self. पास्ट में आपने शायद कुछ ऐसा किया है जिसको लेके आप परेशान हो जाते हैं। पास्ट में शायद आपने ऐसा कुछ कहा है जिसकी वजह से आपके अंदर गिल्ट है। देयर इज समवेयर यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर इमोशनल साइड। तो कहते हैं ना, अगर हम परेशान रहते हैं तो हमारी एनर्जी ड्रेन रहती है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनिफेस्ट थिंग्स इन लाइफ. People who are already in the relationship, and if they are seeing this reading, I must tell you are somebody who is very selfless, who is very intense in their relationship, who give themselves totally in the relationship. तो ये समझना है कि ये आदत अच्छी है या बुरी है. You have to first of all see that how much you are receiving, you know. You can't be just blind and do things. तो आपका जो disappointment आया है recently, उससे भी आपको निकलना होगा, because things are going to change. And somewhere there is a master card. मास्टर कार्ड का मतलब है थोड़ा अपने स्पिरिचुअल सेल्फ पे काम करना. अगर आपके लाइफ में कोई गुरु है, उनका ब्लेसिंग लेके चलना, अपने लाइफ के कोर्स को करेक्ट करना, क्योंकि मास्टर होगा तो आप थ्रेड को पकड़ ही लेंगे. आर यू गेटिंग इट? मास्टर होगा तो हार्मनी आ ही जाएगी, हार्मनी आएगी तो थ्रेड पकड़ लेंगे, थ्रेड पकड़ लेंगे तो हार्मनी आ जाएगी. थ्रेड मतलब कि आपने इनर कोर के साथ कनेक्ट हो जाना. ठीक है. एक बहुत कमाल का कार्ड आया आपके लिए. कैन यू सी इट? या. सो दिस शोज दैट लॉट ऑफ पावर यू हैव विद इन यू.
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बिकॉज ऑफ योर इमोशनल सेल्फ एंड टेकिंग लॉट ऑफ बर्डन ऑफ द रिलेशनशिप, समटाइम्स यू ओवर बर्डन योर सेल्फ, यू बर्न आउट योर सेल्फ, और जिसकी वजह से आपके दूसरे एस्पेक्ट पे भी असर पड़ जाता है, बीट हेल्थ, बीट करियर। तो हमारा रिलेशनशिप जो हमारी ज़िंदगी में है ना, वो हमारी ज़िंदगी की ग्रोथ में एक पावर की तरह जुड़ना चाहिए, एक सपोर्ट की तरह जुड़ना चाहिए, ना ही एक बोझ की तरह या एक परेशानी और दुख की तरह। तो ये आपको एक बार चेक करना है कि वॉट एवर रिलेशनशिप यू आर इन, हाउ मच इट इज़ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ। ग्रोथ कैन बी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिनेंशियल, एवरीथिंग, राइट। तो वो एक चेक करें। आपके लिए और कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं, वो टैरो कार्ड्स फॉर द गाइडेंस के अगर आप अभी रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, या आप रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या आप रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं, तीनों की गाइडेंस मैं आपके लिए दूंगी। मैं पाइल नंबर 3। सो लेट्स चेक फर्स्ट 2 कार्ड्स कि मैनिफेस्ट कैसे करना है जो भी आपके विशेस हैं, रिलेशनशिप को ठीक करना या रिलेशनशिप को छोड़ के जा सकना, वॉट एवर इट इज़, what you need to change within, because some changes are required, and what you need to let go. Okay, तो इसको let go, change and how to manifest. Let's check. तो पहले क्या let go करना है वही देख लेते हैं। Justice, okay. What you need to change, the devil, okay, interesting. What you need to manifest, how can you manifest, okay. I'm very intrigued to see these 2 cards. So सबसे पहले आपको क्या लेट गो करना है। शायद आप बहुत ज़्यादा सही गलत में पड़ जाते हैं। इट्स अ जस्टिस कार्ड। तो जस्टिस कार्ड का मतलब क्या है, क्या सही क्या गलत के चक्कर में आप बहुत बार रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ले आते हैं, खुद के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ले आते हैं, और शायद इसकी वजह से समवेयर यू आर सफरिंग राइट नाउ। सो मे बी यू हैव टू लेट गो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, यू हैव टू नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड फॉर द रिलेशनशिप, राइट। लेकिन बहुत उसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल बनाना, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक एनर्जी में चले जाना, ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, ये भी हो सकता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आप शायद रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दे देते हैं और आपको नहीं मिलता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब जस्टिस नहीं हुआ है तो क्या करने की ज़रूरत है। द डेविल का कार्ड है, क्या आपको चेंज करना है। जस्ट लुक एट द कार्ड, द स्नेक इज एक्चुअली लुकिंग यू इन द फेस। तो ये कार्ड तो बस यही कह रहा है कि बहुत कंट्रोल फ्रीक नहीं बनना है, ना ही किसी चीज़ को हमें खुद को कंट्रोल करने देना है, ना हम किसी को कंट्रोल करें, ना कोई हमें बंधन में बांधे, ठीक है। और डेविल का कार्ड का मतलब ये भी है कि शायद हम अटैचमेंट में बहुत फंसे हैं। लव एंड अटैचमेंट, दे टू आर डिफरेंट थिंग्स, राइट। बहुत बार हम अटैचमेंट को ही प्यार समझ लेते हैं, लेकिन अटैचमेंट में हम सिर्फ हमें क्या मिल रहा है वो देखते हैं, और प्यार में हम क्या दे रहे हैं वो भी हम देखते हैं। थोड़ा सा चेक करें कि अटैचमेंट में तो नहीं है आप। अगर अटैचमेंट में है तो थोड़ा सा खुद पे काम करें, बिकॉज यू आर समबडी हु इज़ समबडी हु कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट लव इज़। लेकिन बहुत बार हम लव और अटैचमेंट दोनों को ऐसी पकड़ लेते हैं ज़ोर से कि फिर लव तो हाथ से छूट ही जाता है, और अटैचमेंट भी हमारी ज़िंदगी में एक मुसीबत बन के, कंट्रोल बन के, या एक बोलते ना एक ट्रैप बन के हमारी ज़िंदगी में फंस जाता है। तो आपको ना तो किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, ना ही कोई आपको कंट्रोल करे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंडली, आपके लिए बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि हाउ कैन यू मैनिफेस्ट दीज थिंग्स। तो मून का कार्ड आया है। अब आपके लिए मून का कार्ड आया है तो मैं आपके लिए एक मून का गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी, लेकिन ये कार्ड बहुत क्लियर ये बता रहा है कि आपको अपने मन पे काम करने की ज़रूरत है। यू आर समबडी हु इज़ नॉट इमोशनली और मेंटली वेरी स्टेबल ऑल द टाइम्स। नोबडी इज, राइट, नोबडी इज स्टेबल ऑल द टाइम। बट अगर आपके लिए स्पेशल मून कार्ड है तो इसका मतलब है आपकी मूड्स और आपकी जो एनर्जीज जो है वो मून के हिसाब से बदलती है, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, उसका बहुत गहरा असर आपकी रिलेशनशिप के मैनिफेस्टेशन में पड़ रहा है। एट द सेम टाइम नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो क्या बता रहा है, जो ये बता रहा है कि समवेयर थिंग्स आर मूविंग इन योर डायरेक्शन विथ योर पैशन एंड टेकिंग मूवमेंट फॉरवर्ड, यू विल मैनिफेस्ट थिंग्स इन लाइफ। तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, थोड़े डीप कार्ड हैं आपके लिए। मैं पाइल नंबर 3, यू आर समबडी हु इज़ वेरी कनेक्टेड विथ योर सेल्फ। आपके शायद मॉरल्स भी बहुत हाई हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा इतना समझना है कि कोई आपको
आपके साथ इनजस्टिस ना करे। एट द सेम टाइम आपको किसी को बहुत पकड़ना और जकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके आपके लिए मैं एक मून का कार्ड निकालती हूँ, बिकॉज समवेयर आपके लिए मून गाइडेंस आया है। तो मून कार्ड विल एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि इमोशनली या मेंटली कौन सा एस्पेक्ट है जो आपके रिलेशनशिप में मुश्किलें पैदा कर रहा है, या कौन सा एस्पेक्ट है जो आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, सो आई विल गेट दीज मून कार्ड्स, आई विल गेट 2 कार्ड्स फॉर यू। देखिए मैंने दोनों साइड कार्ड रखे हैं एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। एक मैनिफेस्टेशन के लिए और एक जो ये दोनों कार्ड्स आए हैं तो इस एनर्जी को हम कैसे रिलीज़ करें। ठीक है, तो रिलीज़ में आया है द लक इज़ ऑन योर साइड। इसका मतलब है कि समवेयर थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू। यू आर समबडी हु हैज़ अ वेरी प्योर हार्ट एंड थोड़े से सेंसिटिव ज़्यादा हैं, और आप बिना सोचे समझे रिलेशनशिप में प्लीज़ मत कूद जाएं, इतना मत दे दें। जस्ट वेट अ वाइल, जस्ट थोड़ा सा देखें सामने वाला इंसान कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपके कोर वैल्यूज़ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और अपने मन को थोड़ा सा स्टेबल रख के चलना है। और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के लिए आया है emotions are running high. As I said, you are somebody who is very emotional, and somewhere your emotions are the thing which kind of blocks your path at times. तो आपके लिए बहुत सिंपल है, इमोशनली खुद को रेगुलेट करें, और सबसे अच्छा तरीका है अपने ब्रेथ को यूज़ करें। मास्टर का कार्ड है, थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन जानते हैं तो मेडिटेट करें, ब्रेथ वर्क करें, एंड लॉट ऑफ पावर विद इन यू इज़ वर्किंग फॉर यू कॉन्स्टेंटली। और शायद आपकी बात जानते भी हैं। थोड़ा सा अपना बोलते ना हड़बड़ीपन कम करके, थोड़ा सा रिलेशनशिप के पीछे भागना बंद करके अपने साथ कनेक्ट करेंगे ना, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, बिकॉज यू आर समवेयर ब्लेस्ड। आप एक गुरु की बहुत कृपा है माँ, पाइल नंबर 3। तो आपके जो भी गुरु हैं उन्हें प्रणाम करें, अपनी मुश्किलों को उन्हें बता दें, और ख़ुद को बोलते हैं ना एकदम शुद्ध कर ले अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। लास्ट में आपके लिए कुछ लव कार्ड्स निकालूंगी दैट विल हेल्प यू विथ द एनर्जी विच वी आर रीडिंग राइट नाउ। 2 cards for you. What is the love message for the love life of my pile number 3? Playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. तो प्लेफुलनेस में आना है आपको। बहुत सीरियस बहुत बोझ लिया, बहुत परेशान हुए, सब कुछ छोड़ के जस्ट स्पेंड सम टाइम टुगेदर, हैविंग फन टुगेदर, दैट विल बॉन्ड यू इन अ डिफरेंट वे। Aha! Manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. As I said, you are somebody who is very true to heart, very pure at heart. तभी ये मिराकल आया है मैनिफेस्टेशन का। अपने ड्रीम पे बिलीव करिए, अपने हार्ट पे ट्रस्ट करिए, और जिस तरह से हमेशा आप अनकंडीशनल लव देते हैं उसे देते रहिए। बस एक छोटा सा चेंज करिए, अपना भी ध्यान साथ में रखिए, खुद को भी प्रायोरिटी में रखना है। फॉर यू माई पाइल नंबर 3, स्मॉल गाइडेंस इज कमिंग दैट मे बी लेटली वॉट एवर इज हैपन इन योर लाइफ, थोड़ा सा अपने हेल्थ पे आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रूट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा ब्रेथ वर्क करें, मदर अर्थ से कनेक्ट करें, बिकॉज समवे थोड़ा सा आपको हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ योर रीडिंग माई पाइल नंबर 3। आई एम सो हैप्पी दैट सच अ प्योर हार्टेड पर्सन यू आर एंड एवरीथिंग इज कमिंग फॉर यू। सो स्टे ब्लेस्ड, keep loving others, but at the same time keep loving yourself as well. And stay tuned because we will be coming with many more such readings and insights. Namaste.